हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्दी. वेलकम बैक टू माय चैनल Arya Bhatt Academy. Today's topic is Pythagoras theorem. So we'll be learning about the Pythagoras theorem and then we'll solve different problems based on Pythagoras theorem. Okay, so let us begin. First of all, you should keep in your mind that Pythagoras theorem is applicable to right angle triangles only. Okay, so here we have drawn one triangle ABC. इसमें ये आपका 90 डिग्रीज ये एंगल है BAC. ओके, तो इसकी जो सामने की साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. ओके, तो 90 डिग्रीज के सामने की साइड है यहाँ पर BC. So BC is the hypotenuse. AB is known as perpendicular and AC is known as base. Okay, तो अब जब पाइथागोरस थ्योरम है, it says that the square of the length of this hypotenuse is equal to the sum of the squares of the length of perpendicular plus length of base. Okay, so this can be written in the equation form as AB square plus AC square is equal to BC square, right? So let us take one example. सपोज यहाँ पर हम इसके लेंथ परपेंडिकुलर की लेंथ लेते हैं 4 यूनिट्स, बेस की लेंथ लेते हैं 3 यूनिट्स. सो 4 का स्क्वायर विल बी 16 प्लस 3 का स्क्वायर विल बी 9, टोटल विल बी 25. अब 25 का स्क्वायर रूट इज 5 एंड दिस वे वी कैन वेरीफाई दैट दिस इज 5 यूनिट्स एंड हियर आल्सो वी आर गेटिंग 5 ओनली. So this way you can verify the Pythagoras theorem. You can also draw this thing on your notebook and confirm that thing, verify this thing. Okay, one more proof is given by the 12th century Indian mathematician Bhatt. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 4 ट्राइंगल्स को ऐसे अरेंज किया, 4 ट्राइंगल्स हैं सेम साइज के. ओके, जैसे कि यहाँ पर अभी एक जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी लेंथ परपेंडिकुलर की लेंथ है A, बेस की लेंथ है B यूनिट्स एंड हाइपोटेन्यूज की लेंथ है C यूनिट्स. ओके, तो द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज गिवन बाय हाइट एंड टू बेस डिवाइड बाय 2, राइट? ये तो हमें पता है ये फॉर्मूला. तो अभी हमने 4 ट्रायंगल ऐसे अरेंज किए हैं कि जो हाइपोटेन्यूज साइड है C साइड वो बाहर की तरफ रखा है, राइट? सो वी हैव फॉर्म्ड वन स्क्वायर PQRS हैविंग लेंथ एज C एंड विड्थ आल्सो C, राइट? तो हमें फिर एक छोटा सा स्क्वायर अंदर भी बन रहा है EFGH, ठीक है ना? इसकी अब लेंथ देखेंगे तो EF इज इक्वल टू QF माइनस QE, सो दिस विल बी A माइनस B. सिमिलरली इसकी अगर विड्थ देखते हैं FG विल बी इक्वल टू RG माइनस RF, तो हियर आल्सो इट विल बी A माइनस B. ठीक है, तो नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर PQRS is equal to the 4 times the area of one triangle, okay, plus area of this small square. We have already found this area of one triangle as AB divided by 2, so we can multiply it by 4, so we get 2AB plus area of this small square is A minus B whole square. अब इसको हम एक्सपांड करेंगे तो we get A square plus B square minus 2AB. तो यहाँ पर plus 2AB and minus 2AB will get cancelled. So we are getting the area of square PQRS as A square plus B square, इतना square units. Okay. अच्छा, we also know that square का जो area होता है हम कैसे find कर सकते हैं? Length into breadth, that is C into C. तो C square हो गया. So this way we can equate both the equations.
So we get a square plus b square is equal to c square. So this way also we can prove the Pythagoras theorem. Okay, let us now take some problems and we'll try to solve these problems using the Pythagoras theorem. The first question is a ladder 10 meters long is rested along the wall such that its top touches the wall at a height of 8 meters from the ground. Then we have to find the distance of the foot of the ladder from the wall. So this is given. AB is the ladder. इसकी लेंथ दी हुई है 10 मीटर्स एंड जहाँ पर ये टच कर रहा है वॉल को वहाँ से लेकर वॉल की जो हाइट है दैट इज गिवन एज 8 मीटर्स. ओके, so we have to find the distance AC, distance of ladder, foot का ladder and wall, the distance between this two. So we can use this Pythagoras theorem. So here this is hypotenuse, so AB square will be equal to BC square plus AC square, right? This way we can write here. Now unknown is this one, AC is unknown, so we can take this on one side. So AC square will be equal to AB square minus BC square. ठीक है, आप सिंपल उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. AB की वैल्यू 10 है, इट इज 10 मीटर्स, BC is 8 meters, so it will be 10 का square 100 minus 8 का square 64 will get 36. So AC will be the square root of 36, that is 6 meters. So the distance this is 6 meters. Okay, very easy. So just आप देख लीजिए. I hope you have understood. Now let us go for the second question. Here Bhushan first walks 15 kilometers to the east direction and then 8 kilometers to the south direction. Then we have to find the distance between his starting point and the end point. अच्छा, वन मोर थिंग बच्चों, आप अगर एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ओके, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद एक रफ डायग्राम ड्रॉ करिए, उसके बाद ये अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू एंड कोई मिस्टेक भी नहीं होगी. ओके, तो हियर Bhushan is starting from point A and he is going towards in the east direction. Okay, so here we have drawn this, आपका कंपास डायरेक्शन भी दिखा रखा है इसमें. तो जैसे कि आपको पता है कि when you are standing facing north, आपको जो राइट साइड में होता है वो ईस्ट होती है, लेफ्ट होता है आपका वेस्ट और साउथ इज आपके बैक साइड में होता है. ठीक है, तो अभी भूषण इज वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज 15 किलोमीटर्स. ओके, दैट इज गिवन. देन ही इज टर्निंग टूवर्ड्स साउथ. ओके, 90 डिग्री हो गया, तो बी से सी पॉइंट पे जाता है वो, और दिस इज 8 किलोमीटर्स. ओके, so we have to find the distance what he has traveled from A to C. इसके जो बीच का distance है, so we have to find out this. Again we can use this Pythagoras theorem. This is a right angle triangle, so this is the hypotenuse, so AC square will be equal to AB square plus BC square. Very simple. So you can just substitute these values of AB. AB is 15, so 15 square will be 225, 8 square will be 64, total is 289. So AC will be the square root of 289, so that will be 17 kilometers. Okay, very simple. Just go through that thing. अगर आपको नहीं समझ आया तो बच्चों आप तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, अगेन गो बैक एंड अगेन गो थ्रू द सेम. ठीक है, अब दूसरी बार आप देखेंगे तो आपको श्योर क्लियर हो जाएगा. अभी लेट अस गो टू थर्ड क्वेश्चन. देयर इज वन ABCD स्क्वायर उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, ABCD. ठीक है, एंड विद द साइड्स 24, मींस ऑल द साइड्स आर 24 मीटर्स. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA equal to 24 मीटर्स. अब उसने दिया है कि लेंथ AE
is given as 31 meters. So we have to find the length of CE. ओके, तो ये अब देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. वी आर नोइंग दिस BC की वैल्यू इज 24 मीटर्स. ओके, अच्छा ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. BE विल बी इक्वल टू AE माइनस AB. AE की वैल्यू 31 मीटर्स है, AB की वैल्यू 24 मीटर्स है, तो इसमें से माइनस करेंगे इसको तो वील गेट BE. So value of B will be equal to 7 meters plus BC is given as 24 meters. So again using the Pythagoras theorem we can write CE square. This is the hypotenuse. So CE square will be equal to BC square plus BE square. Just substitute the values. We'll get CE as square root of 625. That is 25 meters. Okay. So very simple questions. अब fourth question is if the square of hypotenuse of right angle isosceles triangle is 128 meters, then we have to find the length of the sides. अब देखो बच्चों इसको ना क्वेश्चन को आप पहले अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, फिर एक रफ डायग्राम ड्रॉ करिए, उसके बाद ही अटेम्प्ट करिए. अब देखिए यहाँ पर लिखा है इफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, तो अभी हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया राइट एंगल ABC जिसमें कि ये एंगल 90 डिग्री है, इसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूज है. अब हाइपोटेन्यूज को उसने दिया है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स BC का स्क्वायर इज गिवन एज 128 मीटर्स. ओके, ये है हमारा मेन पॉइंट. और सेकेंड पॉइंट उसने दिया है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AC. ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आपको पता है. तो हियर अगेन वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम व्हेन वी कैन राइट BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. बट वी आर नोइंग दैट AB इज इक्वल टू AC, दैट इज आल्सो गिवन बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो वी कैन राइट BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर या BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो BC square is given as 128 meters. So that will be 2AB square या 2AC square, दोनों में से जो भी आप लिख सकते हैं. तो AB square will be 128 divided by 2. ठीक है, that will be 64. So AB equal to AC will be equal to 64 का square root, that is 8 meters. तो AB और AC दोनों की वैल्यू कितनी आई आपकी 8 meters. ओके, let us go to question number 5. अब इसमें देखिए इसमें लिखा है इन द adjacent figure B is the midpoint of AC which is 18 meters long and length of BD is 12 meters. This length is 12 meters and this is given as 18 meters and this is the midpoint. If one person walks from A to D, point A to point D and then D to C, how much distance he has walked. So again Pythagoras theorem ही है because यहाँ पर देखिए 90 डिग्रीज एंगल दोनों दिए हुए हैं, तो we can apply Pythagoras theorem on ABD as well as DBC. ठीक है, दोनों ट्राइंगल में हम Pythagoras theorem अप्लाई कर सकते हैं और दोनों की वैसे लेंथ और दोनों सेम है. ठीक है ना, दोनों का डायमेंशन सेम है. आप देखेंगे AB इज इक्वल टू BC क्योंकि बिकॉज B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, 18 मीटर्स डिवाइड बाय 2. तो AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू 9 मीटर्स, राइट. लेट अस अप्लाई Pythagoras theorem on this triangle ABD. So we can write AD स्क्वायर, या इसमें भी कर सकते हैं या CD स्क्वायर, दोनों लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ठीक है ना, BC बिकॉज BC एंड AB दोनों सेम ही है. तो AD स्क्वायर जो बिकॉज इसमें अननोन, हमें अननोन इज AD,
So AD square is equal to CD square can be written as AB square का वैल्यू पुट करेंगे, 9 का स्क्वायर विल बी 81, दिस इज 12 का स्क्वायर 144, so total is 225. So AD is equal to CD is equal to square root of 225, that will be 15 meters. Okay, so AD की वैल्यू आई 15 meters, सिमिलरली DC की वैल्यू भी आपके 15 meters है, तो टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल इज 15 plus 15 that is equal to 30 meters. So easy. अब आपका 6th नंबर क्वेश्चन है, इफ द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 centimeters and its diagonal is 10 centimeters, then you have to find the length of the rectangle. अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान रखिए कि जब ब्रेड्थ दी है, ब्रेड्थ यू आर अवेयर दैट इट इज लेसर देन द लेंथ, ठीक है ना, लेंथ हमेशा ज्यादा बड़ी होती है, इज ग्रेटर देन द ब्रेड्थ. ओके, तो यहाँ पर ब्रेड्थ ऑफ द एंगल रेक्टेंगल, तो वी हैव ड्रॉन दिस रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसमें ये साइड छोटी है तो ये ब्रेड्थ है ए बी and equal to CD is equal to 6 centimeter, that is given, and the diagonal, that means BD, the length of BD is given as 10 centimeters. So we have to find the length of AD और BC, जो भी बोल सकते, दोनों लेंथ दोनों सेम ही है. So we can apply this Pythagoras, again Pythagoras theorem we can apply on triangle ABD. Okay, this is a right angle triangle, so we can easily apply this Pythagoras theorem on this. So this is hypotenuse, so BD square will be equal to AB square plus AD square. Okay, now unknown is AD. Okay, so we can write AD square is equal to BD square minus AB square. Simple, BD की वैल्यू रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर, AB स्क्वायर में 6 स्क्वायर, so total is 64. So AD square is 64, so AD will be 8 centimeters. ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा है. अगर कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पॉज करिए वीडियो को, वापस देखिए. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल is 5 centimeters and its diagonal is 13 centimeters, then find the length of the rectangle. सेम है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट थिंग. इसमें देखिए रेक्टेंगल ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर. अगेन विड्थ ये दी है, छोटी वाली है, तो इसकी विड्थ आगे 5 सेंटीमीटर, डायगोनल की लेंथ है 13 सेंटीमीटर. वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस ऑन एनी ऑफ द ट्राइंगल्स. सो हियर वी हैव अप्लाइड ऑन ए बी सी. सो ए सी स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, विड्थ का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर. हियर अगेन length is unknown, so we can write BC square is equal to AC square minus AB square. So just put the values, इसमें आपको 13 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 5 स्क्वायर, so it will be 144. So BC will be 144 का स्क्वायर रूट, that is 12 centimeter. So BC और AD दोनों की वैल्यू कितनी है आपकी, 12 centimeters. Okay, now question number 8 is find the area of a rhombus with sides 5 centimeter and one diagonal is 6 centimeter long. अब जैसे कि आपको पता है कि रोम्बस की सारी साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, प्लस जो अपोजिट एंगल्स वो भी इक्वल होते हैं. ठीक है ना, यानी कि इन दिस केस एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी. एंड सेकेंडली जो डायगोनल आपके जो ड्रॉ करेंगे तो दीज आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल. ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स कि ये जो एंगल है राइट 90 डिग्रीज है, प्लस ये हाफ में इसको डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ सी. सिमिलरली बी ओ इज इक्वल टू ओ डी. राइट, अभी हमें दिया हुआ है कि इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ऑल आर 5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ अच्छा, इसमें वन मोर थिंग, दैट डायगोनल जो होते हैं दोनों इक्वल नहीं होते हैं. तो लेट अस सपोज दैट द डायगोनल ए सी जो हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, इज ए सी नॉट बी डी. हमें बी डी इज नॉट नोन. ओके,
तो अभी देखिए, बिकॉज इसको डिवाइड किया है, ए सी की वैल्यू हमें दी है 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज बाइसेक्टिंग, this diagonal is bisecting AC. So we can write AO is equal to 6 divided by 2, that is equal to 3 centimeter. Okay, अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल पर। अभी हम करते हैं ABO, तो AB स्क्वायर, बिकॉज दिस इज हाइपोटेन्यूज, so AB square will be equal to AO square plus BO square. Okay, and here again unknown is BO, because we are not knowing this length of this diagonal, so we are not aware of this also BO. तो BO की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे ऐसे, तो BO की वैल्यू हमें मिली 4 सेंटीमीटर, राइट। तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया, एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू हमें पता है, तो दिस इज ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया हमें पता है कि हाफ हाइट इंटू बेस होता है। तो ये जो ट्राइंगल है आपका ABC, इसका एरिया हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिमिलरली इसका एरिया हो गया ये भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो दोनों का ऐड करेंगे तो इट कम्स टू 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, रोम्बस का हम एरिया फाइंड करने के लिए हमारा दूसरा भी तरीका होता है, तो दैट विल बी यूजिंग इन द नेक्स्ट एग्जांपल। तो हियर यू कैन फाइंड आउट मींस दिस वे आल्सो द ट्रायंगल, बिकॉज देयर आर टू ट्रायंगल्स आर देयर, तो दिस वे आल्सो यू कैन फाइंड आउट द एरिया, एंड अभी सेकंड उसमें हम उसको डायगोनल का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो अभी इसमें देखिए, अगेन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस विद द साइड्स 13 centimeters and one diagonal is 10 centimeter long. So here again we have drawn this figure ABCD, where AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, that is 13 centimeter given. And let us assume that the diagonal AC is 10 centimeter. ठीक है, here BD का हमें लेंथ पता नहीं है, ठीक है, तो we'll find out the length of BD. तो अभी जैसे यहाँ पर हमने AC की वैल्यू हमें मिली है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड वी आर अवेयर कि ये जो BD है दैट इज बाइसेक्टिंग दिस डायगोनल AC, सो द लेंथ ऑफ AO विल बी 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज 5 सेंटीमीटर्स। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन, दिस इज 5 सेंटीमीटर्स, AB is given as 13 centimeter, so we can find out the value of BO using the Pythagoras theorem. So again let us apply, so AB square is equal to BO square plus AO square, ठीक ना, this is the Pythagoras theorem। इसमें unknown value is BO, तो BO को हम एक साइड ले जाएंगे, तो BO square will be equal to AB square minus AO square। सिंपली उसकी वैल्यू रख देते हैं। अब AB की वैल्यू 13 है, तो AB square is 13 square, that is 169, एंड जो AO की वैल्यू है, सॉरी BO की वैल्यू है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 169 माइनस 25 इज 144, सो BO की वैल्यू आई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बिकॉज BO इज अगेन हाफ ऑफ दिस BD, so BD will be 24 centimeters, because AC is also bisecting this diagonal na? So this diagonal is 24 centimeters and this diagonal is 10 centimeters, and we are also aware कि ये फॉर्मूला है, आपको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज गिवन बाय D1 इंटू D2, मीन्स दोनों डायगोनल का लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 2, तो वी गेट 24 इंटू 10 डिवाइड बाय 2, so इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आप ये ट्राइंगल्स के मेथड से मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 जो था उसमें, तो यू कैन यूज आइदर ऑफ द थिंग, जो भी आपको इजी लगे यू कैन यूज दैट फॉर्मूला। ओके, अभी इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ बेस एज 8.6 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड एज 6.8 सेंटीमीटर, सेम एज अ रोम्बस with the length of one diagonal as 7.31 centimeters, then we have to find the length of other diagonal. Okay, तो देखिए आप क्वेश्चन पहले समझिए आप, एंड ये हम रफ डायग्राम ड्रॉ किया,
तो यहाँ पर उसने दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है जिसका कि बेस यानी कि ई एच की वैल्यू है आपकी 8.6 सेंटीमीटर और जो ये एल्टीट्यूड है वो 6.8 है, एफ आई इज इक्वल टू 6.8, राइट। तो एज वी आर अवेयर कि इसके पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। So we can simply multiply this 8.6 into 6.8 centimeter is equal to 58.48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अभी देखिए आप जैसे रोम्बस हमने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है सेम कैन बी यूज हियर, तो मैंने अलग से ड्रॉ नहीं किया है। तो हियर एरिया ऑफ द रोम्बस इज गिवन बाय डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 2, ओके। अभी यहाँ पर देखिए हमें दोनों की लेंथ नहीं पता है, एक ही डायगोनल की पता है, एक डायगोनल 7.31, so the area of rhombus is equal to 7.31 into d2, तो सेकंड डायगोनल जिसकी लेंथ हमें नहीं पता है, डिवाइड बाय 2 एंड इट इज गिवन दैट जो पैरेललोग्राम का एरिया एंड दिस रोम्बस का एरिया आर सेम, सो वी कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, ठीक है ना। so we can write this 7.31 into d2 divided by 2 is equal to 58.48, ओके। सो d2 को यहाँ रखेंगे, इसको जो भी नॉन फिगर है उसको इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाएंगे, तो वी गेट d2 इज इक्वल टू 58.48, क्योंकि 2 नीचे था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर एंड डिवाइड बाय 7.31, तो इट कम्स टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो वेरी इजी, ठीक है ना। तो दिस वे यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट, ठीक है ना। बच्चों देखो मैं ये चाहूँगा कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, खुद ही कोशिश करिए, अपने आप से ट्राई करिए एंड सॉल्यूशन जो मेरे बताए हुए सॉल्यूशन उसको बाद में रेफर करिए, पहले खुद कोशिश करिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पाता देन ओनली यू जस्ट रेफर माय सॉल्यूशंस, ओके। अच्छा वन मोर, हमने होमवर्क दिया हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, तो जो फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स जो भी गिविंग करेक्ट आंसर्स तो दे विल बी रिवार्डेड, ओके। तो ट्राई टू सॉल्व इट एंड जितनी जल्दी हो सके हमारे ईमेल आईडी में आप भेजिए, ठीक है, तो यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट, ओके। अच्छा आज का जो कोट है वो एक साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल लीडर नेशनल मंडेला ने दिया हुआ है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन, ठीक है ना। तो आप जैसे मान लीजिए कि एक कोई जंगल है, उसमें कोई बिल्कुल घना जंगल है और उस पर कोई रास्ता नहीं है, आप जब पहली बार देखते हैं तो उसको लगेगा कि यार यहाँ तो कुछ जा ही नहीं सकते आप अंदर, रास्ता ही नहीं है, बट देयर विल बी समबडी, कोई होगा जो कि उसमें रास्ता बना देगा, सपोज आप ही हो वो कि आपने एक रास्ता बना दिया, तो बाद में जो लोग आएंगे उनको लगेगा अरे ये तो बहुत ईजी है, जबकि जो पहले आया था उसको इम्पॉसिबल लग रहा था वो, ठीक है ना। तो एक बार जो काम कर देते हैं उसके बाद वही चीज़ इजी लगने लगती है, ठीक है। ये कोट वही कह रहा है, तो आपको हमेशा कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं मानना चाहिए, कोशिश करने से हार नहीं होती, ठीक है ना। चलो ऑल द बेस्ट एंड देखते रहिए, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मालूम चलता रहेगा, नोटिफिकेशंस आपको आएंगी, ओके। ऑल द बेस्ट।